that you have. I was being a perfect host, raising any questions. नहीं यार, see, here's the thing. It's life, right? Like, I've handled so much stupidity, right, and so much value destruction. कि a lot of things have started failing to surprise me, right? तो and ups and downs हर चीज में, ठीक है. The whole thing is whether you get affected by those downs, or whether at the core of it you know where you stand, right? If you know where you stand and you are honest with yourself, तो सब negativity handle हो जाती है, right? And entrepreneurship is all about handling the ups and downs. ना मतलब unfortunate part ये है कि जब business plan बनाते हैं as management students, आप Excel में जब right में खींचते हो उसको business plan को, everything goes up, ठीक है. वो लीनियर कर्व होती है कि जी मेरे इतने कस्टमर बढ़ते रहेंगे, मेरा इतना रेवेन्यू बढ़ता रहेगा, इतना प्रॉफिट बढ़ता रहेगा. बट इन रियल लाइफ इट्स नेवर अ लीनियर कर्व, राइट? इट गोज लाइक दिस एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन. आई थिंक दैट अनसर्टेनिटी अनफॉर्चुनेटली वी नेवर टीच इन बिजनेस स्कूल्स और अदरवाइज, राइट? एंड इन जनरल व्हाट आई हैव सीन इज कि पीपल आर वेरी शाय ऑफ टॉकिंग अबाउट the downside, the tough times, right? अरे भाई क्या हो गया यार, मतलब है तो है, मतलब केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, FIR हुई है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है. अभी तक मेरा किसने क्या उखाड़ लिया जो आगे उखाड़ लेगा? मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ स्टेज पे चढ़ने से पहले ये सोच रही थी कि इफ समवन आस्क्स दिस क्वेश्चन, विल इट बी अ गुड क्वेश्चन टू आस्क टू यू. आपने ये क्वेश्चन का आंसर देके मेरा काम तो आसान ही कर दिया, सो आई एम रिलीव्ड माई सेल्फ, सो दैट्स देयर. नाउ थोड़ा सा डिविएट करके मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत फेमस सेइंग है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ मैन. I'm putting in your different situation because I do know that there is someone sitting in the audience amongst us. So what role has family members or maybe your partner has played in your life? So I've been married with Madhuri for almost 16-17 years now, right? And it was a love marriage. In fact, मैं IIM की preparation कर रहा था, CAT की preparation कर रहा था at Career Launcher, and that's where I met her, and she was in NIFT. अब मेरे को नहीं पता वो NIFT के बाद MBA करने क्यों आई थी, right? but that's where I met her, and मैंने 2 साल MBA करा, तब तक शादी पक्की नहीं थी. But the day I got a job, उस दिन शादी पक्की हो गई, ठीक है. So I got married at the age of 24. Right. आज की डेट में किसी को 24 साल में शादी करने को बोल दो ना तो ऐसा लगता है ब्लास्फेमी है, मतलब क्या बोल रहे हैं, राइट? Sheer blasphemy. Yeah. So I got married pretty early, and therefore I have, known my wife for more than half my life now, right? In that sense, and last 4 years she's also working with me. Yeah. So उसके पहले she was not working with me, but when I started Bharat Pe, she also started working with me. So yeah, it's been great, यार. मतलब I think we both like to work with each other. We have very different skill set. ठीक है. I am not a people's person at all. Yeah, like you mentioned. Yes. मतलब मैं 5 मिनट बात करने के बाद ना मेरे को खुंदक आने लगती है बंदे पे, ठीक है, कि खत्म कर यार, अब छोड़. But she can have a chat for an hour with a person, right? I don't like looking at cost. ठीक है, मतलब मेरा BP बढ़ने लगता है cost देख के. I like to focus on the revenue side of things, the growth, the top line side of things, right? She is much more comfortable looking at cost and going deeper into them and cutting them down. So बहुत ही complementary skill है, right? And therefore हम भिड़ते कम है, मतलब दूसरे का काम उसका काम मेरे को नहीं करना, मेरा काम उसको नहीं करना, और बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट है और कॉम्प्लीमेंट्री पैशन है. तो इट्स बीन गुड.
so far. Yeah. And yeah, I knew that the moment आप मुझे लगा कि ये पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है. So congratulations for such a wonderful partnership. तो आपने मुझे इशारा दे ही दिया कि आपको ज़्यादा देर बात करना उतना पसंद नहीं है. So I will definitely be moving on to the second half of the session. I request the volunteers to be ready with microphone. And if you have questions for Mr. Ashneer Grover, please raise your hand. So you already have a hand. Would you like to take the questions now? Sure, itself? sure. Yeah. Please give him the microphone. If you could introduce yourself. I request, please do not ask repetitive questions so that we can get to know more of our speaker. Thank you so much. नहीं रिपीटेटिव भी पूछ लो, तुम्हारी लगेगी, मेरा कुछ नहीं है. मैं अपने बच्चों को बचा रही थी. गुड इवनिंग सर. सर पहले तो सोचा था इंग्लिश में पूछूं, फिर आपने वार्निंग दे दिया तो इंग्लिश में नहीं पूछूंगा सर. सर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो जैसे कि मैं थक गया हूँ सर थोड़ा. सर मेरा नाम मशहूद चौधरी है, मैं इसी कॉलेज में BBA 4th सेम में हूँ. सर एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन जो बिजनेस स्टूडेंट के पास रहता है कि स्टडी करते समय अगर एक अच्छा बिजनेस प्लान आए तो स्टडी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए सर, या उस बिजनेस के पे फोकस करना चाहिए. तो ये सर एक बहुत जेनरिक क्वेश्चन है जो मेरे दोस्तों के पास भी रहता है. तो ये सर आप मुझे पूछना सर. यार देख, मैं ना इसमें थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हूँ, ठीक है. मेरे को ये लगता है कि जो काम करने निकले थे वो पूरा करो. मतलब ऐसा तो नहीं है ना पढ़ाई कोई 25 साल की कमिटमेंट है. आपने 3 साल का कोर्स करना है या 4 साल का कोर्स करना है, ठीक है. उस 4 साल के कोर्स में भी 1 year into द कोर्स तुमको अगर ऐसे अंदर से फीलिंग आने लगी है कि नहीं यार इसको छोड़ दो और मैं कुछ काम करूं, तो देन जो काम पकड़ा है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है. आधा टाइम होता है क्या है कि बच्चों को पढ़ाई करनी होती नहीं है. एंड स्टार्टअप इज अ वेरी गुड प्लेस टू हाइड. मैथ्स सोचो ना, 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल, ठीक है. तो अगर फेल ही होना है बोल तो मैं तो स्टार्टअप कर रहा था जी, ठीक है. पढ़ाई भी नहीं करनी, माँ बाप को लग रहा है बच्चा तो कुछ अच्छे राह में निकला था और बाद में फेल होगा तो बोल दो जी 99% तो फेल ही होती है, तो मैंने कौन सा कुछ उखाड़ लिया, राइट. तो डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज, राइट. वेरी रेयरली हैव आई सीन कि कोई बंदा इतना सेल्फ ड्रिवन है कि उसको लगता है कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जो है उसका कोई मतलब नहीं है. मैं सेल्फ एजुकेट करके या काम करके अपने आप को बेटर बंदा बना लूंगा. हाँ, अगर उतना लेवल ऑफ डिसिप्लिन है तो प्लीज डू व्हाट यू वांट टू डू, बट ना स्टार्टअप को एक इजी एक्सक्यूज मत बनाओ कि पढ़ाई भी नहीं करनी और कुछ भी नहीं करना. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. Ladies and gentlemen, for the ones, obviously everybody knows him and he's a public figure. He is a graduate from IIT and also completed his MBA from IIM Ahmedabad. So you do know where his basics are, right? Yeah. Next question, I do see a girl in blue. Yes. Hello, sir. Sir, my name is Shraddha Sarki and I'm from the Department of Mass Communication and Journalism. So I have this question that is, today as we got the news about that 81 crore, everything that happened. So, I mean, I guess you were on your way when you got the news. So what was your reaction to that, and all the way from here to there to here, and you had to come and give an interview. So how did you handle that? यार कुछ रिएक्शन नहीं है, मतलब स्टुपिडिटी है ना. मतलब मैं स्टुपिडिटी पे क्या रिएक्ट करूं. And it's not like, see, first time stupidity hits you, it hits you harder, right? Because you're not expecting it. But if stupidity starts hitting you every 2 months, then you're used to it. ना मतलब it becomes part of what you have to handle. अब सिंपल सी बात है यार, सेम केस को 4 बारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं. कभी बोलते हैं कंप्लेंट हो गई, कभी बोलते हैं कोर्ट केस हो गया, कभी बोलते हैं FIR हो गई, ठीक है. मतलब मैं उनको बोल रहा हूँ भाई जो भी करना है करके खत्म करो यार. ठीक है, मतलब सेम कहानी पे अटके पड़े हो. एंड यू नो ऑल दीज रैंडम फिगर्स, 81 करोड़. भाई 81 करोड़ क्यों है, 800 करोड़ बना लेते, बना नहीं था तो. मतलब कुछ तो बड़ा सोचो. मतलब जब फट्टे ही मारने हैं तो बड़ा फट्टा मारो ना. 800 करोड़ रुपए ले गया बंदा, मेरी भी इज्जत बढ़ेगी मार्केट में. 81 करोड़ माय फुट.
Next question. Yeah. Hi, Ashneet. Wait. This is this side. Yeah. Oh, yeah. I am Rahul from Integrity. I run a financial advisory service firm here in Northeast. Recently, BharatPe has started expanding into lending and insurance services also. Dhire dhire. So, where do you see this kind of services being extended to customers? What special thing would you bring on the table for the customers? भाई मैं भारत पे से बाहर हूँ, पहले ये समझ ले. नहीं यार, वो सी आप पहले भारत पे का मैं बिजनेस समझाता हूँ थोड़ा, जब मैंने बनाया था. अभी क्या रहता फैला वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बट पहले मैं बताता हूँ क्या था. सो आई इन 2018 व्हेन यूपीआई केम आउट, मैंने इंडिया का फर्स्ट इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड निकाला था. मतलब एक क्यूआर कोड पे पेटीएम भी चल जाएगा, फोन पे भी चल जाएगा, गूगल पे भी चल जाएगा. ठीक है. दूसरा मैंने क्या किया, मैंने ये क्यूआर फ्री में दे दिया मर्चेंट को. पहले क्या था कि मर्चेंट 1000 रुपए कलेक्ट कर रहा है तो उसके 2% मतलब 20 रुपए कट जाते थे. मैंने बोला कुछ नहीं कटेगा, फ्री में यूज करो. तो जब मैंने फ्री में बांटना शुरू करा, विद इन 6 months मैंने 50 लाख क्यूआर कोड लगा दिए इंडिया में. नाउ फॉर 10 years बिफोर दैट पेटीएम ने 1.5 करोड़ क्यूआर लगाए थे, बट वो उस पर 2% बनाने की कोशिश कर रहा था. बट मेरे को पता था दुकानदार पे मार्जिन ही नहीं है यार. जो बंदा खुद ही नेट 6% घर लेके जाता है वो तुमको 2% थोड़ा देगा पेमेंट्स का. सो मेरा सिस्टम चल गया उससे. देन आई सेड कि चलो बढ़िया है, बट ये तो फ्री का काम है, मतलब इसमें पैसे कहां से कमाओगे. सो आई केम अप विद अ वेरी इंजीनियस. अगर आप एक दुकानदार हो, आप 30,000 रुपए का बिजनेस करते हो, मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दूंगा और मैं हर रोज 400 रुपए काट लूंगा 1 साल के लिए. ठीक. तो अगर आप इंटरेस्ट रेट से जाओ, वैसे बोलने को 2% पर मंथ नॉन रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है, बट अगर आप IRR की कंप्यूटेशन करोगे, इट्स अ 48% IRR प्रोडक्ट. 48%, राइट. बट दुकानदार के लिए अच्छा था, बिकॉज उसको लगा कि बाहर के बाहर 1 लाख रुपए आए, कस्टमर आके पे करता है, 400 रुपए कट जाते हैं, मेरे को कोई पेन नहीं है, मतलब महीने के एंड में नहीं देना, कुछ चेक नहीं देना. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर. I disbursed close to 10,000 crores to shopkeepers on this. Right? फिर जब ये बन गया, अब ये था कि भाई 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं तो आएंगे कहां से. ठीक है. सो आई वॉज वेरी क्लियर कि इफ आई गो टू अ बैंक और उनको बोलूं कि आप इनको लेंड करो, वो नहीं होने वाला है. बिकॉज बैंक को दुकानदार समझ ही नहीं आता. बैंक को है कुछ गिरवी रख जाओ, पैसे ले जाओ. राइट. अनसिक्योर्ड लोन समझ ही नहीं आता उनको. सो व्हाट आई केम अप विद वाज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम. जो मेरे क्यूआर पे ट्रांजैक्ट कर रहे थे, मैंने उनको बोला आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे मत लेके जाओ, बिकॉज वहां पे आपको 0% मिलता है. सो इन इंडिया ऑन करेंट अकाउंट यू गेट 0% इंटरेस्ट. ठीक है. वो क्यों मिलता है किसी को नहीं पता. सब बोल देते हैं आरबीआई अलाउ नहीं करता, बट टेक्निकली बैंकिंग का बिजनेस ही 0% देने पे बना है टू बिजनेसमैन. सो आई टोल्ड माई शॉपकीपर्स कि मैं आपको 12% इंटरेस्ट दूंगा. एंड शॉपकीपर्स वर सेइंग कि सही है यार, वैसे भी हम तेरे सिस्टम के थ्रू पैसे कलेक्ट करते हैं, बटन दबाएंगे जब चाहिए होगा तब ले जाएंगे, वरना हर रोज का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा. सो बिल्ड अ वेरी गुड सिस्टम वेयर ऑन वन साइड आई वॉज अर्निंग 48% एंड ऑन द अदर साइड आई वॉज गिविंग 12%, एंड ऑल विद इन माई नेटवर्क. मतलब बाहर के किसी कस्टमर से बात ही नहीं करनी. आधे दुकानदार पैसे दे रहे हैं, आधे ले रहे हैं, उसमें मैं 36% कमा रहा हूं. सो दैट्स द बिजनेस आई बिल्ड, एंड दैट्स द रीजन भारत में बिकेम अ $3 billion कंपनी. राइट. बिकॉज धंधा तरीके से बनाया है वहां पे. A robust system where it was also quite ingenious that it was one of the first time. Next, please raise your hand. Volunteer. Oh, there's one here. Do a mic check. Speak into the microphone. Yeah. Hello, Ashni ji. I just want to keep it short and simple. Like, who is your biggest inspiration? Like, अभी जब business करते हैं, और आपका रिसेंटली एक रील भी देखा था मैंने, जहाँ पर आपने बोला था कि आपको पॉलिटिक्स में आना है. सो लाइक व्हाट्स योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर दैट? ये इंस्पिरेशन क्यों चाहिए, मतलब सी मेरे से ना आइडल वर्शिप नहीं होती इन सम सेंस. मतलब बहुत सारे लोग ना लुक अप टू, दे स्टार्ट लुकिंग अप टू समवन, कि किसी के लिए इलॉन मस्क एक इंस्पिरेशन है. राइट. बट मैं कभी किसी को लुक अप टू करके नहीं बना. हाँ, मेरे को रिस्पेक्ट बहुत है जो भी बंदा लाइफ में कुछ अचीव करता है. ठीक है.
वो अगेंस्ट बहुत सारे ऑड्स जाके अचीव होता है. कभी ऐसा नहीं होता कि यार फ्लोट करते हुए बंदा कुछ बन गया. ठीक है. सो एनीवन हु अचीव्स एनीथिंग इन हिज डोमेन एंड इज द एक्सपर्ट इन हिज डोमेन, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. बट देयर इज नो आइडल वर्शिप. मतलब मैं ये नहीं है कि यार इसके जैसा बनना है, बिकॉज दैट्स वेयर यू लूज योर इंडिविजुअलिटी, राइट. हाँ, बड़ा आदमी बनना है वो मेरे को बहुत इंस्पायर करता है, बट इसके जैसे बनना है कभी मैंने किसी का नहीं सोचा. So, who is your favorite politician? यार जो मेरे को एमपी बना दे वो मेरा फेवरेट पॉलिटिशियन है. Yeah, there's one over there. Laksh, you can come here. There's one over here. Then we'll move the question to you. Yeah. Hello, sir. So nowadays, the college batch has opted to give a drop year to any student who want to pursue startups. So what is your take on that? Do you think that this should be adopted by all the colleges in India, and whether it should be promoted? नहीं, ठीक है, एक साल ड्रॉप दे दिया, ठीक है, बट अगर कुछ नहीं बनाया एक साल में फिर क्या? तो मेरे को लगता है उससे एक साल एक्स्ट्रा भी पढ़ाना चाहिए उसके बाद फिर. But don't you think that entrepreneurship will be promoted in this manner, like 1 year drop? नहीं यार, सी मैं, as I told you, I am not a big fan of कि एक साल, मतलब ऐसा क्या हो गया कि तुम एक साल अपनी पढ़ाई पूरी करके नहीं काम कर सकते. ठीक है. ऐसा तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इसी साल है और अगले साल नहीं होगा. वेरी रेयरली डू यू कम अक्रॉस अपॉर्चुनिटीज की जो भाई यही विंडो है, इसी 2003 और 2004 23 और 24 के बीच में ही करना है. अगर यहाँ पे नहीं किया तो कभी नहीं हो सकता. तो जब वो सिनेरियो ही नहीं है, एंड यू नो इट्स अ लॉन्ग हॉल गेम, आप एक साल में क्या ही कर लोगे यार. सो इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट टू सी इफ समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, बट गोइंग इन मेरे को लगता है कि इट्स टू शॉर्ट अ पीरियड, एंड बी आई एम अ बिगर फैन ऑफ सेइंग पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर जो मर्जी आए करो. Thank you. Next. Yeah, Laksh. Hello, sir. This way. Sir, I'm Laksh Sharma from BBA 6th SEM, this university. So, sir, my question is कि आप बहुत महंगे घड़ी खरीदते हो, बहुत महंगे जूते खरीदते हो, तो आपका राय क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन यार. तो क्या हुआ, मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया. ठीक. तो मेरे को बोलते हैं कि आपने, एंड वेरी सीनियर गाय इन इनकम टैक्स, राइट, एंड मेरे को बिठा के मेरे को बोलता है कि आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में. मैंने बोला हाँ जी खरीदी. ठीक है. फिर बोलते हैं आपने एक 30 करोड़ रुपए का मकान खरीदा. ठीक है. मैंने बोला हाँ जी खरीदा. देन आई आस्क्ड हिम कि, मैंने बोला एलिगेशन क्या है? मतलब यू आर टेलिंग मी फैक्ट्स कि हाँ मेरे को भी पता है मैंने 3 गाड़ी खरीदी है, मैंने भी मकान खरीदा है. बोला एलिगेशन क्या है? मैंने उसको बोला मेरे को एक बात बता, मैं 40 साल का हूं, मैं IIT गया, IIM गया, पढ़ाई करी, 9 साल मरवाई अपनी नौकरी में. ठीक है. फिर 2 स्टार्टअप करी, दोनों यूनिकॉर्न बन गई इंसिडेंटली. ठीक है. लास्ट वाली स्टार्टअप मतलब $3 बिलियन की कंपनी बन गई. मैंने एक बैंक भी बचाया. There was a bank called Punjab Maharashtra Cooperative Bank. I saved that bank. I gave 10 lakh depositors their money back, which was stuck for 2 years. And I did all of this below the age of 40. ठीक. अब साला मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूं? दान करने के लिए. तो भाई मैं मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार. मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूता मैं पहनूंगा, और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा. कमाल है यार. मतलब साला हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही है, पैसे को लेके ना, मतलब सबका व्यू ये है कि गंदी चीज है, और साले सब पैसे से चलता है. मतलब मैं आपको बुरा मत मानना, हिंदुस्तान में मंदिर में भी पैसा चढ़ता है. बाहर कहीं चले जाओगे ना कि चर्च में पैसे नहीं पड़े होते, राइट. बॉस, वी आर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहां पे सगन में भी पैसे चढ़ते हैं, समझो. जो जितना ज्यादा सगन देता है उतना सगा होता है तुम्हारा, तभी नाम सगन पड़ा उसका.
ऐसे सिस्टम में मतलब कोई पैसा कमा ले तो तुम उसको बुरी नजर से देखते हो कि जी ये कैसे कर रहे हो. भाई मैंने ठेका ले रखा है यार. यूएस में अगर जेफ बीजोस बहुत अमीर हो गया, इलॉन मस्क बहुत अमीर हो गया, अगर वो साला जाके यॉट खरीद रहा है, कोई उसको बोल रहा है तू वो यॉट क्यों खरीद रहा है? तो हिंदुस्तान में क्यों है यार ये? तो आई थिंक ना पैसे को लेके एटीट्यूड चेंज होना पड़ेगा. हमने पैसे को अननेसेसरली बुरा बनाया हुआ है, ठीक है, और किसी के पास पैसा आ जाए तो हमको लगता है बुरा आदमी है, विच व्यू हैज टू चेंज इफ वी हैव टू प्रोग्रेस. Right. Lakshmi got your answer. There's one at the back. Can we have a mic from the other side of the barricade? Yes. The ones who are sitting in the barricade, if you want to ask a question, please आगे आ जाइए. आगे आ जाइए question पूछने के लिए. Yeah, please ask. हेलो सर, माय नेम इज सौरभ तिवारी. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे एलोन मस्क का एक गोल है कि उसको जमीन के नीचे गाड़ियां चलानी है, ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या मार्स में जाके कॉलोनीज बनानी है. आपका भी ऐसा कोई गोल है क्या कि ये चीज तो इस देश में बदल ही डालेंगे? नहीं यार देख, मेरा इनिशियल गोल ये था कि पहले तो अपने आप को सॉर्ट करो, ठीक है. जो बंदा खुद सॉर्टेड नहीं है वो बाहर दूसरों को क्या सॉर्ट करेगा. तो फर्स्ट गोल वॉज टू मेक मनी फॉर योर सेल्फ, राइट. Incidentally, in the process of making money for me, I was able to change the payments landscape. जहाँ मैंने payments free कर दी country में. Literally, I take full pride कि I was the guy who drove MDR जिसको बोलते हैं merchant discount rate to zero in the country. ठीक है. That was my contribution to the economy and building a good solid business. वो मेरा हो गया, ठीक है. अब मेरा ये है कि जो मेरे को सही लगता है मैं वो करता हूँ. एज अ पॉलिटिशियन मेरा whenever I become a politician, मेरा गोल एकदम सिंपल है. साला हिंदुस्तान में टैक्स रेट कम करो, ठीक है. तुम सोच रहे हो कि तुम 30% और 40% रख लोगे किसी की आमदनी का, ठीक है, और उसके अगेंस्ट सरकार तुमको देती है ठेंगा, लिटरली, राइट, कि सामने वाला फिर चोरी नहीं करेगा टैक्स बचाने की. वो होने ही नहीं वाला. आई थिंक इंडिया इज अ कंट्री वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट. से बॉस 10% या 15% टैक्स रेट है फ्लैट, और सबको टैक्स देना, आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, राइट. यू विल स्टिल एंड अप कलेक्टिंग मोर टैक्स देन यू आर कलेक्टिंग टुडे बाय चार्जिंग 40% मार्जिनल रेट. सो मेरे को तो टैक्स कम करना है इस देश में. मेरे को समझ ही नहीं आता ये 40% का टैक्स रेजिम कैसे चल रहा है. Next. Oh, we have over here. Yeah, we'll come to you. We'll take one question. We'll kind of keep on moving to and fro. Yeah. Help with the mic. Yeah, it's working. Yeah, it's working. Hello. Yeah, all right. Hi Ashni, my name is Vishesh. So my question to you is, when you were in BharatPe, you hired a CEO who was previously a CEO of a snacking company, and the snacking company was running in tremendous losses. So what made you hire that CEO? And as we know, you got ousted from your own company later on. So what are the things which you will not look for when you are hiring a new guy at a new company, ClickPay? मैं तो बंदे ही नहीं हायर कर रहा यार. मेरे तो विश्वास उठ गया बंदों से. नो मैं वेरी सीरियसली, in my new company I have this rule कि 50 से ज़्यादा बंदे ही नहीं होने. आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड व्हाट्सएप, बट व्हाट्सएप $20 बिलियन पे बिकी थी टू जुकरबर्ग, मेटा. एंड जब वो $20 बिलियन पे बिकी थी, कंपनी में 55 लोग थे, ठीक है. तो जो कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी ना, उसको भी $मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले थे. इनफैक्ट उन्होंने सबने मिलके डिसाइड करा था कि हम कौन सी कलर की फरारी खरीदेंगे, ठीक है, मतलब इवन रिसेप्शनिस्ट. तो मेरे को ये लगता है इन जनरल देयर इज अ लॉट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन स्टार्टअप्स. लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट दैट पॉइंट इन टाइम, जिनका कोई लॉन्ग टर्म रोल नहीं है, राइट. वो बस ग्रोथ मैनेज करने के लिए हायर हुए थे, एंड जैसे ही वो ऑटोमेट हो जाती है उनका कोई रोल नहीं रहता. सो आई थिंक देयर इज अ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओवर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, जो भी बोलते हो आप उसको, बट देयर मोर नंबर ऑफ पीपल देन आर नीडेड इन स्टार्टअप्स, एंड दैट्स व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ फायरिंग्स हैपनिंग नाउ, राइट. सो आई वांट टू नाउ बिल्ड स्लो एंड स्टडी. वो फास्ट वाली गेम खेल ली यार, 2 बार ही खेल ली, मतलब लाइफ में कितनी बारी सेम गेम खेलनी है.
मतलब 2 साल में $1 billion कंपनी, 3 साल में $3 billion कंपनी, यू नो, once you've done it, you've done it, right? There is no challenge to you yourself to do it again. So now my challenge that I've taken upon me is to build something profitable with very low capital, which is slightly like cooking on slow burner. तो आप उस वाले पाथ पे हैं. So that the flavor comes out properly. Yes. Yeah, that side. Yeah. Please pass on the mic. Hello sir, I am Sasikanth from Royal Global School. I want to ask a question that आपने IIT गए, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद फिर IIM जाके बिजनेस में क्यों? IIT गए थे, इंजीनियर बने थे, अच्छा खासा पैकेज मिलता, आराम से कमाते, फिर बिजनेस क्यों? यार तुम बड़ी सारी assumption है तेरी. ठीक है. एक IIT में मैं ठीक ठाक था, मतलब ठीक ठाक तो मतलब मैं डिपार्टमेंटल रैंक 2 था एंड मेरे को इंजीनियरिंग बहुत पसंद थी, बट मैंने की थी सिविल इंजीनियरिंग. ठीक है. एंड सिविल का उस टाइम पे इतनी कोई खास जॉब्स आती नहीं थी. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 बैच पास आउट. इफ आई वुड हैव टेकन अ कैंपस जॉब, आई डोंट नो, मेरे को 4 लाख रुपए मिलते साल के. ठीक है. Which was the situation in 2004, even in IITs, right? It's a very different world today. And मेरे को थोड़ा बिजनेस में ज़्यादा रुझान था एंड उस टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं होता था यार. मतलब इंटरनेट होता था बट नॉट ऑन फोन. सो यू हैड टू गो टू अ लैब एंड यूज इंटरनेट. मतलब मैंने पहली बार ईमेल ही IIT जाके बनाया था. मतलब ये हाल था. सो या इतना एक्सपोजर नहीं था दुनिया का. तो ये था कि ठीक है और पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी पूरी कर लेते हैं. और जब IIM अहमदाबाद में हो जाता है तो यार छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चलो IIT के बाद IIM में मिल रहा है तो जाके कंप्लीट कर ही लेते हैं. सो दैट्स व्हाई आई डिड इट. सो वेरी डिफरेंट वर्ल्ड देन टुडे. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. ओके, वी हैव फ्रॉम वन हियर. विल कम टू यू, टू एंड फ्रो. इट्स नॉट स्विच्ड ऑन. Hello sir. Sir, I would like to ask that there's so much talk about changing the educational policy and so much. You have studied from IIM. It is a very prestigious institution. So I would like to ask you, like, for business students, like those who are pursuing BBA and BCom, should there be a shift from like theoretical knowledge to more of practical knowledge? Because maximum institutions, they provide more of theoretical knowledge, and there's a very less amount of practical knowledge that is involved in, like even for MBA groups. So what is your opinion on that? नहीं, बिल्कुल ठीक है यार. सी मेरे को ये लग रहा है कि समवेयर एजुकेशन एट लार्ज दुनिया से थोड़ी सी पीछे रह गई है. ठीक है. मतलब आपको काम करने के लिए जो स्किल्स चाहिए और आपको जो कॉलेज में स्किल्स दी जा रही है उसमें गैप है. तो जब हम भी फ्रेशर को हायर करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है यार 1 साल तो सिखाना पड़ेगा इसको. ठीक है. कि जनरल स्मार्ट्स है, अच्छे कॉलेज से आया है तो बेसिक एप्टीट्यूड सही है, सीखने की एबिलिटी है, बट काम सिखाना पड़ेगा. राइट. वही अगर जो स्किल्स हैं वो ऑलरेडी कॉलेज में ही दी जाएं, सो वी विल गेट स्लाइटली मोर रेडी प्रोडक्ट्स टू एम्प्लॉय इन द कंपनीज. सो एंड वो मैंने अक्रॉस यूनिवर्सिटीज देखा है. इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी आई वेंट टू रिसेंटली. मेरे को लगने लग गया स्कूल के बच्चे हैं यार. मतलब हमारे टाइम पे कॉलेज के बच्चे बदमाश होते थे, मतलब लाइक शाणे होते थे वो. राइट. अभी जो है वो बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड 99% लाने वाले अच्छे से भोले वाले स्कूल के बच्चे मिलते हैं आपको कॉलेज में. सो समवेयर इट्स इवन गॉन वर्स देन आवर टाइम इन माय व्यू. राइट. सो यू नीड general smarts more than what's being taught right now in the universities. Yeah. I'll go to one question from there and again come back to you. Yes. Yeah. So this is Dhritiman Ghosh from Mumbai University. और मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि आपका डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर का? बिकॉज आजकल कोई भी अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलता है, कोचिंग टीचर भी खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता है, रैंडमली कोई भी एंटरप्रेन्योर बोलता है. सो आपका डेफिनेशन क्या है उसका? नहीं, मेरी डेफिनेशन छोड़, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? इट्स नॉट अबाउट द प्रॉब्लम. अरे भाई बोलने देना. ये तो नहीं बोल रहा ना मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करूंगा. ठीक है. या मतलब नीम हकीम खतराए जान तो नहीं बन रहा तेरे को. मतलब यार सी डोंट गेट, देख
एंड ऑफ द डे यार तुम अपने काम से ना माने जाओगे, ठीक है। तुमको अपने आपको जो बोलना बोल लो। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं अपने नाम के आगे सीए लगाते हैं, ठीक है। मेरे को उसकी वैल्यू नहीं समझ आती, बट मैं उनको जाके टोकता नहीं हूं। मैं ही नहीं बोलता भाई तूने नाम के आगे सीए क्यों लगाया है। कोई अपने नाम के आगे इंजीनियर भी लिख देता है, राइट। कोई डॉक्टर लिख देता है। आजकल एंटरप्रेन्योर लिखना एक फैशन में है, हर बंदे को लिखना है फाउंडर हूं। आई थिंक वो लिंक्डइन में जिसने पेज से फाउंडर की टैग बढ़े हैं उतनी तो दुनिया में कंपनीज ही नहीं बढ़ी। तो इट इज फाइन यार, मतलब यू कैन कॉल योरसेल्फ व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, राइट। एंड ऑफ द डे डोंट गेट ऑफेंडेड बाय व्हाट पीपल आर कॉलिंग देमसेल्व्स। I think there is a question over here. Then we'll move to the flanks. Huh? There's one question from our sponsor over here. Yeah. सर मेरा क्वेश्चन इतना टेक्निकल नहीं है, बस एक जनरल है कि आप इतना चिल कैसे रहते हो। आपका जैसे आपको पता चला कि आप शार्क टैंक में सेकंड सीजन में नहीं हो, फिर आपका 10 करोड़ वाला डाइनिंग टेबल वाला, फिर अभी 81 करोड़ वाला, मतलब एवरी टाइम ये आप ऐसे सिचुएशंस हो गए कि आप ऐसा चिल हो गए या आप पहले से ऐसे थे? मतलब मेरी लाइफ में, मतलब लाइव कपिल शर्मा शो चल रहा है, मैं क्यों क्या हंसी आएगी ना, मैं क्या करूं। मतलब अब आप मेरे को एक बात बताओ, 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल कैसे हो सकती है यार किसी की, राइट। एंड पीपल लाइक इकोनॉमिक टाइम्स राइट अबाउट कि अश्नीर ग्रोवर हैज अ 10 करोड़ डाइनिंग टेबल। तो नो सरप्राइजिंग कुछ नहीं है। But हाँ, I mean like economic forum को कुछ लिखने का लायक कुछ है क्या? नहीं, बट मैं तो अम्यूज ही होऊंगा ना। देखो एक तो चलो एक कोई बंदा सोच रहा है कि अश्नीर इतना अमीर है, इसके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल होगी, ठीक है, वो अच्छी बात है, उनको वहम होना चाहिए लोगों को, अच्छा वहम है, ठीक है, वो ठीक है। बट तुम यार जर्नलिस्ट हो, ठीक है। आजकल जितने जर्नलिस्ट है ना वो है, मैं इनको बोलता हूँ व्हाट्सएप जर्नलिस्ट। भाई मेरे को व्हाट्सएप पे जो खबर मिल गई मैंने छाप देनी है, मैंने सड़क पे तो उतर के देखना नहीं है और अपना दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। तो 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल, अबे यार पूरे दुनिया की हिस्ट्री में मतलब इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, आज तक किसी ने 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल क्लेम नहीं करी, ठीक है। और मैं भी सोच रहा हूँ यार, मतलब तुमने मेरे को शार्क टैंक में देखा था, साला मैं ठोक बजा के पैसे डालने वाला बंदा हूँ। तुमको लगता है मैं 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल खरीदूंगा? मतलब मैं 10 करोड़ के जोमैटो के शेयर्स खरीद लूं ना, मेरी 7 पुश्तें खाना खा लेंगी, वो भी हर रोज ऑर्डर कर करके डिफरेंट। Alright, I think there's one here. Yeah, Chirag. Yes. Good evening, Ashni sir. Good evening, Madhuri ma'am. My name is Chirag Surana. I'm from BPA. So I had a simple question. जैसे कि अभी आप देखे होंगे काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अटेंडेंस को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चों को, तो आपका उस बारे में क्या व्यूज है कि क्या करना चाहिए इससे? So, हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो इससे अभी कैपिटलाइज करेंगे आपका आंसर। देखो हाँ, फुल अटेंडेंस होनी चाहिए। ये लो। यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया पागल है, तुम साले 18 से 21 साल के बच्चों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया। मतलब तुम्हारे के आगे के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे से पहले के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे माँ बाप भी पागल हैं, टीचर भी पागल हैं। सिर्फ तुमको पता है दुनिया में क्या चाहिए और क्या कैसे दुनिया चलनी चाहिए, बाकी सब गधे हैं। जनरली यही व्यू है ना। अब भाई तुम अगर कॉलेज आए हो, क्लास ही नहीं जाओगे तो मतलब फिर मतलब क्या है फिर आने का? ठीक, तो मैं तो अटेंडेंस देखो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, IIT में मेरी 100% अटेंडेंस थी, 100%, राइट। एंड हाँ वो अलग बात है, मैंने प्रॉक्सी बहुत लोगों की लगाई है, ठीक है। एंड वो प्रॉफ को भी पता होता था मैं प्रॉक्सी लगा रहा हूं, मेरे को कुछ बोलते ही नहीं था, क्योंकि अब यार प्रॉफ भी समझदार इंसान ही है, ठीक है। उसको दिख रहा है क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अटेंडेंस 20 की लगी है। तो आई थिंक समटाइम्स द प्रॉफ वाज आल्सो प्लेइंग अलोंग कि ठीक है तू अलग अलग आवाज में निकाल के बोलते, मैं यस लिखता रहूंगा यार, प्रेजेंट लिखता रहूंगा। बट इन जनरल माय व्यू इज कि यू आर मिसिंग आउट यार। देखो कहीं से भी एब्सेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है।
All right. I think we'll take a question from the other side. Yeah. Please Good pass evening, on the mic. sir. Well, my name is Mr. Oja, Bhavin Oja, and I am the economics faculty of the same institution. सर मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 5G के टाइम में जो यंग जनरेशन यूथ है जिनके लिए मन में ये होता है कि जॉब में इतना कोई आनंद नहीं है, मज़ा नहीं है, बिजनेस करने से बहुत आसान वे से अमाउंट आ जाएगा, तो उनके लिए ये पेशेंस का खेल समझना और समझाना कैसे आप एडवाइस करेंगे कि कैसे, मतलब एकदम से तो नहीं हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग जा रहे हैं और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फ्रॉड हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं मेरा तो अमाउंट डूब गया, तो कैसे आप सर इस चीज को हैंडल करेंगे? नहीं यार ठीक है, लाइक मेरे को ये लगता है कि जो चीजें है ना वो कभी भी बैलेंस में नहीं रहती, ठीक है। एक टाइम था कि हम लोग नौकरियों के पीछे बहुत भागते थे। इट वॉज नॉट गुड कि अगर कोई एंटरप्राइज ही नहीं करेगा तो फिर नौकरियां क्रिएट कहां से होंगी। सो इफ ऑल ऑफ अस बिकम जॉब सीकर्स, हु विल बी द जॉब क्रिएटर? अब थोड़ा अदर एक्सट्रीम में चला गया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन जनरल आपने फाउंडर देख लिए, स्टार्टअप्स देख लिए, तो अब आपको लगता है कि नहीं यार नौकरी नहीं करनी, एंटरप्रेन्योर बनना है, which I somewhere feel is a good place to be, right? Because in essence you are trying to be job creator, right? Now ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग घुसेंगे वहां पे कर लेंगे, because अगर आप ये सोच के घुस रहे हो बिजनेस करने में या स्टार्टअप करने में कि because it's the easier thing to do, वो दुनिया तुमको सिखा देगी it's not the easier thing to do, it's the most difficult thing to do or the more difficult thing to do than doing a job, right? So I think let the kids be यार, मतलब let them figure it out. खुद ठोकरे खा के समझ जाएंगे। आई थिंक दैट्स माय ओनली आंसर। राइट, नेक्स्ट। ओके, कैन वी हैव समवन फ्रॉम स्कूल? आई नो, आई कांट सी मच। या चूज वन, आई डोंट नो। इफ द क्वेश्चन इज नॉट रेपिटेटिव, यूज योर ओन। हेलो सर, आई एम फ्रॉम आरजीएस। सो आप हम स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना पसंद करोगे और आप स्टूडेंट लाइफ में आप क्या सोचते थे? सोचता था किस बारे में? अपने लाइफ क्या करोगे आप आगे लाइफ में? नहीं यार इतना ज्यादा नहीं सोचता। मेरे को लगता है आजकल तुम ओवर थिंक करते हो यार लोग। मतलब इतना सोचना थोड़ा होता है यार। एंड सी माय मैसेज टू स्टूडेंट्स इज कि कुछ पढ़ भी लिया करो। मैंने किताब छापी है, वो पढ़ लो। मतलब जो किताब में एज अ प्रोडक्ट मैंने लिख दिया ऑलरेडी, वही सवाल तुम मेरे को मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। सो रीड अ बिट एंड रीडिंग थोड़ी ज्यादा करोगे तो अपने आप थोड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, we look for an interesting question. If you have faith that the question is interesting, हाथ उठाइए। Yes, माइक दे दो भाई। मैं यहाँ से क्या what can I do? हेलो, हाय अश्नीर, दिस इज अरिंदम फ्रॉम नाइट प्रोडक्शन। अश्नीर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि अगर कोई भी ब्लूमिंग कंपनी है ना, उसे क्या देखना चाहिए जब वो स्ट्रक्चर बना रहा होता है अपना कंपनी का, और अपने पार्टनर्स में ऐसा क्या चीज है जो उसको मैचअप कर सकता है उसका कंपनी को बिल्ड करने के लिए? ये पार्टनर्स और को फाउंडर्स में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्किल देखनी होती है। बिकॉज अगर आपके पार्टनर को भी वही काम करने में मजा आता है जिसको आपको करने में मजा आता है, सो लेट्स से आप दोनों को कोडिंग करने में मजा आता है, ठीक है, फिर सेल्स भी करनी है धंधा ग्रो करने के लिए, तो तुम आपस में भिड़ते रहोगे कि मेरे को कोडिंग करने थे, मेरे को कोडिंग करने थे, राइट। बट अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल है, एक बंदे को कोडिंग करने में मजा आता है, दूसरे को सेल्स करने में मजा आता है, तो बिल्कुल काम बटा हुआ है कि बॉस ठीक है, यू डू व्हाट यू लाइक, आई विल डू व्हाट आई लाइक एंड वी विल ग्रो द कंपनी टुगेदर। सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल in a partner or in a co-founder is very important. All right. Next. Hi sir, this is Rod this side. I'm from IIT Guwahati. I'm very excited first of all. It's Asneer Grover himself. And thank you for coming to Guwahati sir. मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है कि सर आप लोग बोलते रहते हो कि आपके पास अगर अच्छा आइडिया है और अच्छा कुछ प्रोडक्ट है तो वी आर रीचेबल, राइट? दैट्स व्हाट यू क्लेम, बट देन अगेन आई टेक्स्टेड यू इन लिंक्डइन सर, यू डिडंट रिस्पॉन्ड। सर वो तो दोगलापन हो गया ना सर। Sir, just kidding about that doglapan part, of course. But then again, sir, if a guy like me, I have a startup idea and I build an app, but then again, how to reach out to someone like you, sir? मेरे पास tech है sir, लेकिन sir business guy नहीं है.
Sir, how to reach out to you? That's the first question. And second, without getting into Shark Tank, because आप उधर अभी आप नहीं हो सर, तो जाना ही नहीं है. And second question ये है सर कि suppose मेरे पास एक ऐप है, उसमें minimum कितना users होना चाहिए to be able to sit in front of you and talk to you sir. So that I can validate myself कि हाँ इतना users है मेरे पास. अभी असनीर ग्रोवर सर जो है मेरे पास बैठेंगे कि उसको realize होगा बंदों ने कुछ तो उखाड़ा है सर. That's the thing sir. Two questions. And I'd be really thankful if you could let me know how can I reach out to you in particular, sir. Thank you. यार आज के ज़माने में तुम रीच आउट का बोल रहे हो, साला मैं यहाँ पे हर रोज 20 नंबर ब्लॉक कर रहा होता हूँ, ठीक है. तो यू नो इफ यूर अ टेक गाय एंड यू कांट फाइंड माई नंबर देन यू नॉट अ टेक गाय, ठीक है. तो मैं बहुत सिंपल बोल रहा हूँ कि यू नो जिसको पहुँचना होता है ना वो पता नहीं कहाँ से नंबर निकालता है पर पहुँच जाता है, ठीक है. एंड मोस्टली ऑनलाइन ही निकालता है, मेरे को ये पता है. So figure out that way, and see, end of the day, it's game of perseverance, right? Most of the places where you end up investing are places जहाँ पे तुमको बंदा तुमको मिला, तुमने ना बोल दिया, फिर वो 2 महीने बाद फिर से मिला और उसने तुमको कुछ सरप्राइजिंग नंबर दिखाया कि सर आपने लास्ट टाइम इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, देखो मैं इतना बढ़ के आ गया. अभी यू नो शिप ग्लोबल करके जो कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करा है, The first time I met him, I remember, he was telling me कि मेरा 5 लाख रुपए का सेल है महीने का, ठीक है. And when I met him last week, his number was 2.2 crore per month, right? So he's gone from 5 lakh to 2.2 crore, and all he did was kept me in the loop saying कि सर इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया. And after a while, you know, the numbers speak to you. So मेरे को लगता है डोंट एम्फसाइज मोर ऑन योर एबिलिटी टू सेल. कई बारी सिंपली आप नंबर फेंक के छोड़ दो, अगर नंबर इज बिग इनफ सामने वाला बंदा खुद कॉल कर लेगा आपको. Alright, next. We won't take many more questions, so yeah, please frame your questions carefully. Volunteers, please give. I mean, we have one hand over here. I mean, he has been raising his hand. Can you see? Pink shirt. Yeah, we'll come to you as well. Yeah, over there. Yes. Hi sir, I'm Ronak. सर मेरा एक ही सवाल है आपसे कि सर आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था, आपके कुछ आइडियाज़ थे कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट होगा ग्रोथ के लिए. एंड डूइंग बिजनेस फॉर 15-16 ईयर्स, आई एम गेसिंग आपके आइडियाज़ चेंज होंगे ग्रोथ के लिए. एंड थोड़ा देर पहले आपने बोला था एक फाउंडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. तो सर एज अ पर्सन क्या ग्रोथ आपके लिए अभी मैटर करता है, एंड दोज थिंग्स शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल. ये ग्रोथ, सी एंड ऑफ द डे बिजनेस में 3 चीजें हैं: स्केल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है. मेरे को ये लगता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एनी फाउंडर 2 ऑफ देम शुड बी देयर. या तो स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी हो, या प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ हो, या ग्रोथ और स्केल हो, ठीक है. अगर तीनों में से सिर्फ एक है तो तुमको सॉल्व करना है बहुत जल्दी कि 2 चीजें हो जाएं. और अगर तीनों हैं तो तुमने यूरेका मूवमेंट हो गया है, अब तुम्हारा बहुत सॉलिड बिजनेस बन गया, इसको आईपीओ कर दो, राइट. सो दैट्स माय सिंपल फॉर्मूला. सो नॉट नेसेसरली यू नो स्टक ऑन ग्रोथ, बट अगर स्केल है और प्रॉफिटेबिलिटी, इट्स अ गुड बिजनेस. मे बी योर ग्रोथ इज ओनली 10% पर ईयर, but it's profitable growth, right? So it's a good business. So 3 में से 2 नहीं बहुत जरूरी है मेरे लिए. All right. There's a guy in green. Volunteer, if you can see over there. Yeah. Hello sir. सर आपने एक बार कहा था कि आपने जितना पैसा बिजनेस में नहीं कमाया उतना ऐसे इन्फ्लुएंस से कमा लिया. सर तो आपको क्या लगता है फुल टाइम इन्फ्लुएंसिंग ठीक रहेगा? यार इन्फ्लुएंसिंग फुल टाइम है ही नहीं, वो वेलापंती का काम है, ठीक है. फुल टाइम वेला होना अच्छी बात नहीं है, पार्ट टाइम वेला होना चाहिए. सो सी आई डू, इट्स नॉट दैट कि आई डू इन्फ्लुएंसिंग. यार मतलब देख, मेरे को ये लगता है कि हम ना बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इसको डेमोक्रेटाइज कर दिया, उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया. सोशल मीडिया ने एक सेलिब्रिटी और उसका इन्फ्लुएंस को डेमोक्रेटाइज करा है. सो आज की डेट, पहले क्या था, लोग सिर्फ मूवी स्टार्स को जानते थे, तो एड भी मूवी स्टार्स को ही मिलती थी, और वो एड आती थी टीवी पे या मूवी के बीच में, ठीक है. अब मार्केट चेंज हो गई है, मूवी कम चल रही है, राइट. इन्फ्लुएंसर्स को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं,
और सबके पास फोन है, वो सब फोन पे पूरा टाइम रील देख रहे होते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो देखते हैं. तो ब्रांड्स भी घूम फिर के उन इन्फ्लुएंसर के पास आ गए, बिकॉज दे फाइंड कि इन्फ्लुएंसर के थ्रू किसी को रीच आउट करना बड़ा आसान है एंड यू नो इफेक्टिव है. सो मार्केट चेंज हो गई है यार. नाउ इफ आई पुट अ रील एंड रील के 1.5 करोड़ 2 करोड़ व्यूज हो रहे हैं, राइट, सो आई शुड मोनेटाइज इट. नो, अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट. ठीक है, मतलब मेरे को मजा आ रहा है, दैट्स अनदर थिंग, बट सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहे ना. अब तुमको उससे पैसा भी मिलना चाहिए. अगर इस स्केल पे मजा आ रहा है और तुमको भी आ रहा है और बाकियों को भी मजा आ रहा है, तो बाकियों को तो पैसे देने चाहिए ना तुमको मजे लेने के लिए. तो सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि यू नो इफ यू हैव अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इफ यू यूज सोशल मीडिया प्रॉपरली, you can make money out of it. Now, whether you want to make it a full-time job or whether you want to do it part-time is up to you. What appeals to you? मेरा कोई जजमेंट नहीं है. मतलब जनरली ना लोगों को इन्फ्लुएंसर्स को लेके थोड़े नेगेटिव कॉनोटेशन है कि अरे वेले लोग हैं, कुछ भी करते हैं, क्रिंज है, राइट. वो बोलने से कुछ नहीं हो रहा यार. वो बंदे को पैसे मिल रहे हैं ब्रांड से, राइट. एक रील डालने के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, राइट. तुम यहाँ पे 5 लाख कमाने के लिए 6 महीने नौकरी करोगे, ठीक है. वो सोचो. एंड सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू गेट फॉलोअर्स. आई कैन टेल यू इट्स नॉट ईजी. That's right. I think they were raising a hand since a very long time. Last question. ठीक है. He says it's the last question. Would you like to choose? Wait. Would you like to choose? Who would like to ask a question? I mean, like मैं अगर choose करूँ तो बोलेंगे कि partiality अब आपके ऊपर जाएगा. I don't want to take the blame. You choose your last one. So let's ask one of the girls some smart questions. One of the question में दम है तो हर था. Oh, अच्छा, let's. I don't know. I'm a little partial. I'll ask my colleague to question, put across a question. Yes, Dr. Payal, please put across a question. Mike, please. Hello, Mr. Grover. I'm Dr. Payal Chaudhary from Royal School of Business. I just want to know, you have been wonderfully successful in 2 of the business. Can you tell us the ideas which didn't work out and was an experience of learning for you? यार कुछ लर्निंग नहीं होती जो काम नहीं करता. तो उदासी होती है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है. लर्निंग पता नहीं क्यों लोग उसको लर्निंग बोलते रहते हैं. आई थिंक सक्सेस टीचेज यू लॉट मोर. फेलियर में भी टीचेज यू अ फ्यू थिंग्स कि क्या नहीं करना है, बट इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न क्या करना है, राइट. सो नहीं, मैं फेलियर को ना ग्लैमराइज नहीं करता. इट्स अ वेरी डार्क प्लेस. डोंट गो देयर. आई थिंक लर्न फ्रॉम सक्सेस. दैट्स द बेस्ट लर्निंग. Alright. I think the Sir, guest one speaker. last question, please. Sir, please. हाँ हाँ ठीक है, ले ले चल. Hi, sir. I'm Sakshi Paul from MBA second sem. सर मेरा ये सवाल है कि मैं और मेरे दोस्त बैठ के अभी यही बात कर रहे थे कि एक पीएम का सवाल आया था आपको, एंड देन वी रिकॉल दिस इंटरव्यू इन बियर बाइसेप्स where you said that you look forward to being a PM just like Rishi Sunak. So what's your roadmap towards that? I mean, मतलब फिर वोटिंग यही से शुरू हो जाएगी? नहीं नहीं, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. मेरे को क्यों पीएम बना रहे हो? हमारे पीएम अच्छा काम कर रहे हैं मतलब. नहीं सर, आपने कहा था ना कि बनना है. नहीं, that's a very, you're going in the wrong place, okay. As a politician I don't want to go there, but नहीं यार, see, मेरे को ये लगता है कि हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए सेलिब्रेशन में. 42 साल का एक इंडियन ओरिजिन का बंदा अगर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया है, so then we are celebrating as Indians, saying कि अरे देखो Indians are ruling the world and what not, right? But at the same time, as voters, would you vote for a 42-year-old guy when he stands for elections? Is my question, right? So मेरे को ये लगता है कि पॉलिटिक्स में ना वो बहुत दोगलापन है कि जब सेलिब्रेट करना है तो बोलो जी हाँ जी ऋषि सुनक बहुत बड़ा आदमी है यार, 42 साल का, इतना यंग है, इतना डायनेमिक है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया, यू नो कोई रेसिज्म नहीं के सब पड़ाव पार करके वहां पहुंच गया. बट एट द सेम टाइम जब तुमको खुद सीट बांटनी है, ठीक है, तो तुमको 65 साल से कम का कोई बंदा नहीं मिल रहा सीट बांटने के लिए.
So that was my limited thing on Rishi Sunak, right? And yeah, sabka step. See, everything is stepwise. If you think you'll run for election and first year you'll become PM, you should not even run for election. You're disillusioned. You're not fit to be a politician. But yeah, you should be aspirational, saying ki by the time of 50, 55, can you be 2 times MP, understand the ropes of the game, and inspire to be a young Prime Minister eventually. well, last का मतलब last होता है. Last का मतलब last होता है. ये नहीं कि second last penultimate, ultimate हो गया अब. Let's end it here today on a good note, and before we come to a formal closing, I thank our title sponsor, Kisle Food, associate sponsor, Integrity Money, powered by Balaji AVP Pure Water, and Jeevan Ram Vinod Kumar. Co-powered by Achut Developers, PK Security थोड़ा करना पड़ता है, पैसे दिए हैं. Imperial Plast and Beverage, Rhino Electricals, Rajasthan Lime Udyog, Cost to Cost, clothing partner Not Best Clothing, printing partner Outlook Advertising, media partner NKTV Plus, creative partner NAI Productions, gifting partner Jain Stationers, styling partner Raju Reyes, community sponsors An Academy, Upgrade Uttarayan Group, Intex, Fujifilms, Griffard, Nizon, Grintech Residency, Divinity, 4 Acres, Retail Private Limited. I hope I have made everyone happy. Thank you so much. And with this, we come to the end of a... I would say it was very... I had a different opinion about you, but I'm really happy to have been given this opportunity to be able to have a conversation with you. Interview to nahi bolenge wo zyada formal ho jata hai, but it was more like like discussion that we had. चला गया भाई, ऐसे मत काट दो. And I would thank all the people, our management, our Chancellor Sir, Pro Chancellor Sir, our Vice Chancellor Sir, Registrar, Pro VC Sir, everyone, Madhuri Ma'am, all the sponsors, students, participants who came in and asked such brilliant questions. I think it was a wonderful evening of conversation. The type of conversations that we have over a cup of tea. Assam mein hai to tea bolenge, coffee nahi bolenge. So that we have over a cup of tea. Thank you so much, and I'm glad our students and everyone here got a chance to listen to you. Thank you so much. Thank you.